اس کے سامنے کھلی اور بے پردہ ہے. آمین آمین آمین. غلام تیرا کلام میری زندگی ہے. غلام تیرا کلام میری خوشحالی ہے. غلام تیرا کلام میری رہنمائی کرتا ہے. غلام تیرا کلام میری راہوں کو بنا دیتا ہے. غلام تیرا کلام سلامتی ہے. میں اس سے نہ دائیں مڑوں نہ بائیں مڑوں. آمین آمین ہاللویا ہاللویا. آئے خدا کے کلام کو اور خدا کے پادوں کو تعریف بچا کر بیٹھیں. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. آئیے تشریف رکھیں. بائبل مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 6واں باب 9ویں آیت سے 13ویں آیت تک. متی 6 باب 9 آیت سے یہاں لکھا ہے، بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام باپ مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہی ہے. آمین. سب کہیے آمین. کلام کے پاک کلام کے پڑھے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے. کہیے آمین. آج کا کلام پچھلی سیریز جو شروع کی گئی ہے پچھلے اتوار، اس کا دوسرا حصہ ہے. یوں سمجھیں کہ میسج نمبر 1 آپ پچھلے اتوار سن چکے ہیں، اور آج آپ سنیں گے پیغام نمبر 2. اور یہ پیغام جو ہے یہ سنایا جائے گا دعائے ربانی the Lord's Prayer میں سے. پچھلے اتوار ہم نے جن باتوں پہ غور کیا، میں تھوڑی سی باتوں کو دہراؤں گا اور پھر ہم آگے چلیں گے. خداوند یسوع مسیح نے یہ پیٹرن دعا کا اور یہ جو نمونہ ہے یا ماڈل ہے پریئر کا، یہ شاگردوں کو دیا. متی کی انجیل 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح بھیڑ کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ بھیڑ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا. اور 5ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر پھر 5واں پورا باب اور 6واں باب اور 7واں باب، 5 6 7 یہ 3 باب ایسے ہیں جن میں خداوند یسوع مسیح نے پہاڑ کے اوپر اپنے شاگردوں کو تعلیم دی ہے، بھیڑ کو نہیں. بھیڑ کو چھوڑ کر پہاڑ پہ چلا گیا. اس کے شاگرد اس کے پاس گئے اور اس نے وہاں ایک لمبا چوڑا واعظ شاگردوں کو دیا، شاگردوں کو ٹیچنگ دی. اور یہ جو دعا کا ماڈل ہے وہ پہاڑی واعظ کا حصہ ہے. اس کے دوران یسوع مسیح نے یہ دعا کا پیٹرن یا نمونہ اپنے شاگردوں کو دیا. اور پوری دنیا میں یہ دعا چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڑے فر کر کے سناتے ہیں. میں نے بھی شاید پہلی دوسری جماعت میں ہوں گا، شاید اس سے بھی پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت تو اسی کچی پکی کرنے سا، تو شاید میں کچی کلاس میں تھا یا پکی میں تھا، تب سیکھا تھا میں نے. اور پھر دوسری یا پہلی جماعت میں آ کر میں نے انگلش میں بھی یہ دعائیں پڑھنی سیکھی. تو بہت سے ملکوں میں اس دعا کو دہرایا جاتا ہے. چرچز میں اگر کبھی دعائے ربانی یہ دعا نہ کی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا ہماری عبادت نامکمل ہے. لیکن میں آپ کو یہ وہ باتیں ہیں جو پچھلی بار
बता चुका हूँ, दोबारा सुनिए। आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि ये दुआ किया करो। अब सामने देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, पास तुम, पढ़िए भाई, पास तुम इस तरह दुआ किया करो। ये नहीं लिखा कि ये दुआ किया करो, ये दुआ पढ़ा करो, जी नहीं, इस तरह। इसका मतलब है कि ये दुआ पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, इस तरह से दुआ करने का मतलब है कि जब हम दुआ करें हमारी दुआ में ये सारी बातें शामिल हो। तो ये दुआ शागिर्दों को सिखाई गई कि इस तरह से दुआ किया करें। अगर हम रटी रटाई दुआ या लिखी लिखाई किताबों में जो दर्ज है दुआएं पढ़े तो दुआ नहीं रहती, वो नमाज कहलाती है। और बाइबल में कभी कहीं भी हमें नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, दुआ करने के लिए कहा गया। ये रटी रटाई दुआएं खा वो कलाम से क्यों ना ली गई हो या किसी इंसान ने क्यों ना बनाई हो, उसकी किताबें छपी हुई हैं, नमाज की किताब, बाइबल में इसका हुक्म नहीं है। मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। बाइबल में दुआ करने को कहा गया है, दिली दुआ। अब ये जो बार बार एक ही दुआ को पढ़ना या जैसे कई जगहों में ये कहा जाता है ऐ खुदा रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, 10 दफा 15 दफा, और कई दुआएं ऐसी हैं जो 9 दफा पढ़ी जाती हैं, और फिर कई दुआएं और भी हैं कई दूसरे मतलब यूज कहने के बहुत से विषयों में। मैं कहना चाहता हूँ इसके बारे में आपकी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, खुदा का कलाम क्या कहता है, आइए पढ़ें। मत्ती की इंजील 6 बाब, वही पहाड़ी बात का हिस्सा ही है। 6 बाब की 7वीं आयत में यीशु ने कहा, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बकबक ना करो। बकबक को मैंने रेड इंक के साथ हाईलाइट किया है। बकबक ना करो क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने से, हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। तो मैंने पिछले बार भी बताया कि बकबक करने का मतलब उर्दू में तो पता नहीं क्या है, लेकिन जहां से ये लफ्ज आया है उसका मतलब इंग्लिश में देख ले क्या है। उसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। क्या लफ्ज है ये? वेन रेपिटिशन। इसका मतलब है कि बिला जवाब बार बार रिपीट करना, वो दुआ नहीं, वो नमाज बन जाती है। तो इससे मना किया गया है, ये बकबक है। बस कई दफा कई लोग कई सबूत कहते हैं 40 दफा उसको पढ़ना है, कई दफा 96 सबूत या 91 सबूत 50 दफा पढ़ना है, और कोई दफा 9 दफा पढ़ी जाती है, और लोग उसे महीना भी कहते हैं। तो इसका कोई बाइबल में वो नहीं है, ये वेन रेपिटिशन है, इसका बाइबल में हुक्म नहीं है। उर्दू में बड़ा अच्छा लफ्ज आया है, बकबक ना करो, तो उसका मतलब है कि इसे हमने बार बार रिपीट नहीं करना, इस गर्ज से कि हमारी सुनी जाएगी। सुनी जाने की यह शर्त नहीं कि बार बार बोलो। क्या खुदा हमारा खुदा बहरा है? अच्छा मैं एक बात बताऊं, अगर आप अपने डैडी से 1000 रुपया लेना चाहें, आप सुन रहे, और आप लिख के ले, किसी से लिखवा ले कि मैंने अपने बाप से 1000 लेना है, कैसे मांगू? और उसने आपको लिख दिया, डैडी जी मुझे 1000 रुपया चाहिए, आज ही चाहिए, आपकी बड़ी मेहरबानी, और आप जाके 10 दफा उनके सामने पढ़े, तो आप क्या कहेगा? मेरा दिमाग तो ठीक है भाई, मुझे वैसे ही कहते जी मुझे 1000 रुपया चाहिए। अगर आप 50 दफा ये लिखा हुआ सामने रख के पढ़ना शुरू करें, डैडी जी मुझे 1000 रुपया चाहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज ही चाहिए, थैंक यू, तो बाप क्या कहेगा? वही बकबक। बाइबल की जो तरीका है वो यही है। चलिए आगे चलते हैं। अब दुआएं मांगने के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है ऐ हमारे बाप से शुरू करके तेरी मर्जी जमीन पर भी पूरी हो, यहां का पहला हिस्सा है। इस पहले हिस्से में सब कुछ खुदा के बारे में है। इस हिस्से में हमने कुछ भी नहीं मांगना। इसका मतलब है कि खुदा यीशु मसीह ने जो मॉडल हमें दिया है वो ये है कि जब दुआ करो तो एकदम मांगना ना शुरू कर दो कि मेरे बिजनेस को ठीक कर, मुझे बरकत दे, और मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसे दे दे, मेरा कर्ज उतर जाए, वगैरह वगैरह जरूर करें, लेकिन शुरू में
مانگنے کی بات نہیں ہے، شروع میں خدا سے مانگتے ہیں، خدا کی تعریف ہے، خدا کی حمد ہے، یہ حصہ اول ہے۔ تو دعا کرتے وقت پہلے خدا جس سے بات کر رہے ہیں اس کی بات کریں، اس کے ساتھ آپ کا اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اور بچے اگر 6 کوئی لڑکا یا بیٹا یا بیٹی 6-7 مہینے تک اپنے باپ سے بات ہی نہ کرے اور 6-7 مہینے میں آ کر باپ سے پیسے مانگنا شروع کر دے تو اس نے تو واقعی نہیں رکھی باپ کے ساتھ، رشتہ ہی نہیں رکھا، کس منہ سے مانگتا ہے؟ اور باپ کہہ بھی سکتا ہے کہڑے منہ میں پیسے مانگنا ہے، میں پچھلے مہینے میرا پتہ ہی نہیں کیتا، وہ حال ہی نہیں میرا پتہ، فون تک نہیں کیتا۔ تو یاد رکھیں پہلے خدا سے بات چیت کریں، خدا کی تعریف کریں، اے خدا ہمارے جلالی کو نہیں ملتا، تو جو آسمان میں تخت نشین ہے، تیرا تخت آسمان پہ ہے، تیرا نام ساری دنیا کے سارے لوگوں سے پاک ہے، ساری دنیا تیرے نام پاک نام کو قبول کرے، اے خدا تیری بادشاہی آئے، ساری بادشاہی سیدھی باتیں کریں، خدا کی باتیں کریں، تو آسمان میں بادشاہ ہے، تیری بادشاہی آئے اور تیری مرضی فرشتے پوری کرتے ہیں زمین پہ، ایسی باتیں پہلے خدا سے کریں۔ بعد میں نمبر 2 یہ دوسرا حصہ ہمارے روز کی روٹی سے شروع کر کے برائی سے بچا، یہ ہے دعا مانگنا۔ لیکن دعا کا حصہ جو ہے پہلا حصہ ہے جب دعا شروع کریں تو خدا کی حمد و ثنا کریں، ستائش کریں، اس کے نام کو جلال دیں، اس کی بڑائی کریں، اس کی بڑائی کریں، پھر مانگنے سے اعتراض نہیں ہے، باپ ہے ہمارا مانگنا چاہیے، لیکن پہلے حمد و ثنا۔ تیسرا حصہ سب کٹھے مل کے پڑھیں، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہے، آمین۔ اس کا مطلب پہلے حصے میں آپ نے خدا کی حمد و ثنا کی، دوسرے حصے میں اپنی درخواست رکھی اور تیسرے حصے میں پھر خدا کی ستائش۔ یہ سینڈوچ ہے جاوید بھائی، یہ سینڈوچ ہے۔ اس کا اوپر کا حصہ جو اس کا برگر کا دیکھ لیں آپ، یا جو آپ برگر کیا لیں، اس کا اوپر کی سطح اور نیچے کی سطح ایک جیسی ہوتی ہے اور درمیان میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اوپر اور نیچے کی تہ جو ہے وہ ایک جیسی ہے اور درمیان میں بہت کچھ بھرا ہوتا ہے۔ کیا کیا بھرا ہوتا ہے؟ اس میں سیلڈ ہو سکتا ہے، اس میں چکن ہو سکتا ہے، ہاں اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ درمیان میں آپ جو کچھ مرضی مانگ رہے ہیں، لیکن شروع میں خدا کی حمد و ثنا اور آخر میں پھر ستائش۔ بولے ہاللیلویا۔ تو یہ ہے پیٹرن دعائیں پانے کا۔ آگے چلیے، پرانے عہد نامے میں خدا نے بنی اسرائیل کو اپنی اولاد سمجھا اور اپنے آپ کو ان کا باپ کہا، لیکن انہیں پرواہ نہیں تھی۔ دیکھیں کیا لکھا ہے خروج کی کتاب 4 باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، یہ موسیٰ کے بارے میں ہے کہ جب موسیٰ کو خدا نے کہا کہ جا فرعون سے بات کر، تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ میں پہلے اس نے یہ کہا کہ میں کیسے جاؤں، میری زبان جو ہے نا وہ فصیح نہیں ہے، میری زبان میں لغت ہے، اس نے جواز پیش کیے اور خدا نے کہا جا میں تجھے بھیجتا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یشوا یہ اس کا جو اس کا بھائی ہارون تیرے ساتھ ہوگا، چل میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور پھر کہا کہ معجزہ بھی کر کے دکھایا، موسیٰ نے کہا اپنی لاٹھی نیچے پھینک، اس نے لاٹھی پھینکی، سانپ بن گیا، موسیٰ سانپ کے پاس سے بھاگ گیا، خدا نے کہا واپس آ، اب واپس اس کی دم سے پکڑ لے، سانپ کی دم سے اسے دم سے پکڑا اور پھر لاٹھی بن گئی۔ یہ خدا نے معجزہ بتایا تھا کہ موسیٰ میں تیری زندگی میں معجزے کروں گا، مت کرا، اور پھر جا کے فرعون سے کہہ دے، اور کیا کہہ دے تو فرعون سے کہنا خدا یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بن کے پلا اٹھا ہے۔ خدا نے اسرائیل کو اپنا بیٹا بن کے پلا اٹھا کہا ہے، جا اس کو کہہ دے فرعون کو کہ میرا بیٹا میرا پلا اٹھا، اسرائیل جو ہے اس کو جانے دے تاکہ یہ میری عبادت کرے۔ خدا کو نے ہمیشہ بیٹا سمجھتا رہا اور اپنے آپ کو ان کا باپ کہتا رہا، لیکن پورے پرانے عہد نامے میں دیکھ لیں، بنی اسرائیل کی ہسٹری پھاڑ کے دیکھ لیں، وہ ہمیشہ خدا کے خلاف چلتے رہے، باپ کی پرواہ نہیں کی۔ نیکسٹ آیت دیکھیں، اور یہ ہے ملاکی کی کتاب 1 باب اور اس کی 6 آیت، حوالہ اوپر درج نہیں لیکن آیت ہے۔ تو یہاں لکھا ہے آخری کتاب پرانے نامے کی، یہاں لکھا ہے کہ رب فاضل
रब अल-फात तुमको फरमाता है, ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिरों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने मालिक आका की ताज़ीम करता है। बस अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है। और तुम कहते हो हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की, खुदा हमको गिला है, अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ। आज भी आपने देखा होगा किसी बाप को कहते हुए, और यार मैं बाप हूँ आपका, बाप को बाप रहने दो, मेरी इज्जत कहाँ है, मेरा कहाँ है एहतराम, अब मेरा एहतराम क्यों नहीं करते, बाप का जो है वो क्या वो क्यों नहीं देते। बाइबल में लिखा है अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, तो बाप और माँ ये कह सकते हैं कि मेरी इज्जत कहाँ। खुदा को बनी इसराइल से गिला है, मैं तो तुम्हें पैलौठा समझता हूँ, आपका बेटा समझता हूँ, लेकिन तुम कायम समेत सारे जो मुझे धुतकारते हो, फिर तो पीछा करते हो, गोया ये कहते हो बाप को कहते हो लेकिन बाप की कदर नहीं करते। अगर बाप हो मेरी इज्जत कहाँ, और अगर आका हो मेरा एहतराम कहाँ। फिर खुदा ने एक तरीका सोचा, चलो नहीं सोचते, नहीं मुझे बाप मानते, तो एक हल निकाला, और हल क्या निकाला, यीशु मसीह को भेज दिया। जरा यीशु मसीह के लिए तालियां बजाइए। समझते नहीं, ना बाप समझते हैं ना खुदा समझते हैं, तो खुदा ने प्लान किया अपना बेटा यीशु मसीह भेज दिया। तो 11वीं आयत यूहन्ना की जीव पहले बाब की 11वीं आयत लिखा है, वो अपने घर आया, यहूदियों के पास आया। मरियम यहूदी थी, यूसुफ जो यीशु मसीह का पालने वाला बाप है वो भी यहूदी था। तो लिखा है वो अपने घर आया, उसके अपनों ने कबूल ना किया। खुदा ने तो ये कहा बाप ने कि चलो मुझे बाप नहीं मानते, मैं एक हल निकालता हूँ। वो अपने इसराइल के पास आया, इसराइल ने फिर भी कबूल नहीं किया। लेकिन एक खुशखबरी दे दूं, अभी आप देखें 12वीं आयत यूहन्ना की जीव पहले बाब की 12वीं आयत क्या लिखा, लेकिन जितनों ने कबूल किया बनी इसराइल से, जितनों ने कबूल किया, पतरस ने कबूल कर लिया, पौलुस ने कबूल कर लिया, मत्ती ने कबूल किया, 12 शागिर्दों ने कबूल किया, बेशुमार लोग 3000 लोग एक ही दिन पेंटिकोस्ट के दिन उन्होंने कबूल कर लिया। लेकिन जितनों ने यीशु मसीह को निजात देना कबूल किया, यीशु ने उन्हें खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा, यदि उन्हें जो यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाए। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। यीशु के नाम पर ईमान लाने से हम खुदा के बेटे और बेटियां ठहरते हैं। आप सब जितनों ने यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाए हैं, आप सब खुदा के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए आप उसमें बहन भाई एक दूसरे की तरफ देखें, आगे पीछे दाएं बाएं देखें, हाँ थोड़े एक दूसरे आगे पीछे देखें, पीछे भी आगे भी, ये आपके बहन भाई बैठे हैं, ये आपके बहन भाई बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने यीशु को अपना निजात देता कबूल किया है। यीशु ने इन्हें खुदा के बेटे बेटियां बना दिया है। हम एक फैमिली बन गए हैं। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। हम एक फैमिली हैं, हम बहन भाई हैं, ना सिर्फ गुड न्यूज़ चर्च बल्कि पूरी दुनिया में यीशु मसीह को कबूल करने वाले लोग एक फैमिली है, उनका एक बाप है और वो बाप खुदा है। हालेलुया। अब सिर्फ यीशु को कबूल करने वाले बाप कह सकते हैं और नहीं कह सकते, और उनको हक नहीं है। शागिर्द ईमानदार उनको कहा गया कि दुआ करो तो है हमारे बाप। अच्छा, मैं थोड़ी सी उर्दू की गलती खत्म करना चाहता हूँ। ये लिखा गलत नहीं है, पढ़ा गलत जाता है। लिखा है ए, बोले ए, सब बोले ए हमारे बाप, और लोग कहते हैं आए हमारे बाप। आए का तो मतलब होता है कि वो आए तो आए नहीं बोलना है ना, क्या कहना है ए। आए का तो मतलब होता है कि मम्मी आए, चाचे आए, रिश्तेदार आए, तो आए नहीं ए हमारे बाप। तो आप शागिर्द कह सकते हैं ए हमारे बाप। फिलिप्पियों 4 बाब की 6 आयत। और चूंकि यीशु मसीह को कबूल करने से हम खुदा के बेटे बन गए हैं और खुदा का रूह हमारे अंदर है, तो फिलिप्पियों 4 बाब की 6 आयत लिखा है, और चूंकि तुम, यदि कि हम सब, बल्कि आप कहिए चूंकि हम खुदा के बेटे हैं, इसलिए खुदा के बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा गया है, जो एबा डैडी
हालेलुया। हमारे अंदर खुदा का पाक रूह है। जब हम गैर ज़बान में दुआ करते हैं हमें मालूम भी नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन रूह कुछ हमारे दिल के साथ मिलकर बाप को ऐ अब्बा या डैडी कह रहा होता है, वो हमारा बाप है क्योंकि यीशु मसीह को हमने कबूल किया है। बोले प्रेज़ द लॉर्ड, बोले प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बयान कर रहा हूँ कि यीशु खुदा हमारा बाप है, इसलिए हम कहते हैं ऐ हमारे बाप। और दुनिया के किसी मजहब में उनके मजहब की वाणी को बाप नहीं कहा जाता। गुरु नानक को गुरु कहते हो, डैडी या अब्बा या फादर या बाप नहीं कहते। दुनिया के सारे बाबू महसूस हैं, ना वो सुनते हैं, ना देखते हैं, ना बोलते हैं, ना दवाओं का जवाब देते हैं, लेकिन हमारा खुदा जो आसमानी बाप है वो जिंदा है, वो देखता है, वो बोलता है, वो दुआओं का जवाब देता है। दुनिया का कोई माबूद बाप नहीं है, सिर्फ एक ही बाप है और वो हमारा खुदावंद है। और हमें मना किया गया है किसी और को बाप नहीं कहना। पढ़िए जरा मत्ती 23 बाप की 9 है। मैंने इंग्लिश में दोनों में राधोतन ये लिखा है और लिखा है 23 बाप की 9 है, और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो। अपने प्योर तो डैडी कहना ही है। जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है, यानी जो आसमानी है। जो आसमान में वो बाप है, बाकी तो आसमान में नहीं, वो तो कब्रों में है। किसी को अपना बाप ना कहो, इंग्लिश में किसी को फादर ना कहो। हाँ, अगर आपका कोई डैडी है फादर उसको तो कहना है भाई, लेकिन जो नहीं है नहीं कहना। इवन पादरी साहब को भी, हालांकि जो पादरी लफ्ज है, मैं नहीं कहता कि मुझे पादरी कहा करें, पास्टर कह दिया करें। पादरी लफ्ज फारसी का लफ्ज है पिदर, उससे निकला है और पादरी का मतलब ही डैडी है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता मुझे पादरी कहा करें, मुझे पास्टर कह सकते हैं, उसका मतलब है चौपान, भेड़ों का चराने वाला। तो पादरी लफ्ज पिदर से निकला है, पिदर का मतलब है बाप। तो बाप कहने की बजाय मैं कलीसिया का बाप नहीं हूँ, कलीसिया का चौपान हूँ, चरवाहा हूँ। बल्कि जो अच्छा चौपान है, अच्छा चरवाहा वो तो खुदा है। उसने मुझे मुकर्रर किया है कलीसिया को चारा देने के लिए, खाना देने के लिए। मैं तो आपका सिर्फ मददगार हूँ। इसलिए किसी को बाप कहने की बजाय हमें उसका जो ताल्लुक है वो कहें और बाप सिर्फ एक है। जी आगे चलिए, ये था बाप के बारे में। अब हम चाहते हैं आगे, और वो है दुआए वाली का अगला जुमला, ए हमारे बाप के आगे क्या आता है? बोले ए हमारे बाप तू जो, बोलिए तू जो आसमान पर है। अब हम बात कर लेंगे जो आसमान पर है। यीशु मसीह ने क्यों शागिर्दों से कहा कि जब दुआ करो तो कहो आसमान पे है? वजह क्या है? वो आसमान पे तो है लेकिन वो जमीन पर भी है, वो हर जगह मौजूद है। यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि जब दुआ करो तो वो ऐ बाप, और फिर कहो तू जो आसमान पे है। उसे मालूम है कि वो आसमान पे है, लेकिन इसलिए कहा गया ताकि उन्हें पता हो कि वो बुलंद वाला है। बोले हालेलुया। वो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता, कोई उसकी कुदरत की कुछ इंतहा नहीं है। इस्तिस्ना की किताब लफ्ज इस्तिस्ना है, बाइबल स्टूडेंट सुन ले। इस्तिस्ना की किताब उसका 4वां बाब और उसकी 39वीं आयत। तो यहाँ लिखा है, बस आज के दिन तू जान ले और इस बात को अपने दिल में जमा ले कि ऊपर आसमान में और नीचे जमीन पर खुदावंद ही खुदा है और कोई दूसरा नहीं है। बोले हालेलुया। आसमान में एक ही खुदा है जो हमारा है, किसी और का खुदा आसमान में नहीं है। उनकी तो हड्डियां भी गल गई होंगी, लेकिन हमारा सिर्फ हमारा ही बाप जो है ना वो आसमान में है। बोले हालेलुया। आप खुश नहीं हो रहे? खुश नहीं हो रहे? तालियां चाहिए अपने डैडी के लिए, तालियां बजाइए। वो डैडी है, डैड है, डैडा है, ठीक है, अब्बा है। तो लिखा कि वो ऊपर आसमान पे है और जमीन पे भी है। तो यीशु मसीह ने उनको कहा कि आसमान पे सिर्फ इस बात को बताने के लिए तो आसमान उसका तख्त है। और एक बात याद रखें, खुदा हमारा बाप, आपका बाप,
ایک ہی وقت میں یک وقت آسمان پہ بھی ہے اور زمین پہ بھی ہے. یہ کیسے؟ آپ نے آیت سنی ہوگی، دیکھیے ذرا یسایہ 86 باب کی پہلی آیت، آپ نے کئی دفعہ یہ آیت سنی ہوگی. دیکھیں خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے. بولے ہاللیلویا. خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی. اس کا مطلب تخت اس کا آسمان پہ ہے، پاؤں جو زمین کے اوپر ہے. تو خدا کا کوئی بدل نہیں ہے، وہ روح ہے، ایک وقت میں وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان خدا کے پاس گیا، تو کہتے ہیں کہ شیطان آسمان پہ کیسے چلا گیا؟ تو ایوب کی کتاب میں جو لکھا ہے کہ شیطان خدا کے پاس گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صرف خدا سے بات کی ہے. اس کا تخت تو آسمان پہ ہے، زمین پہ اس کی چوکی ہے. اس کا مطلب ہے ایک ہی وقت میں وہ آسمان پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی پہچان ہے، اسے ایمانداروں کا خیال رکھتا ہے. آسمان خدا کا تخت ہے. بولے ہاللیلویا. پھر کہیے ہاللیلویا. آسمان خدا کا تخت ہے. متی کی انجیل 5واں باب 34 آیت میں لکھا ہے خدا نے منع کیا خدا کی قسم کھانے سے اور کہا کہ نہ تو خدا کی قسم کھاؤ نہ آسمان کی کھاؤ کیونکہ آسمان میرا تخت ہے. دیکھیے متی 5 باب کی 34 آیت. یعنی کیا؟ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی قسم کھانا کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے. بولے ہاللیلویا. بولے ہاللیلویا. بولے ہاللیلویا. ہاللیلویا. آسمان خدا کا تخت ہے اور خدا اپنے تخت پہ بیٹھا ہے اور فرشتے رات دن بغیر آرام کیے آسمان پر اس کی حمد کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں. خدا ان کے سخن کو سن لے. سخن فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب بات. خدا ان کے سخن کو سن لے. میں نے دیکھا کہ خدا اپنے تخت پر بیٹھا ہے. بولے میں نے دیکھا کہ خدا بولیے کہ میں نے دیکھا کہ خدا اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے دائیں اور بائیں کھڑا ہے. سارا آسمانی لشکر اس کے دائیں اور بائیں کھڑا ہے. اس کا مطلب فرشتے خدا کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق جو ہے، جو تھا، جو آنے والا ہے، وہ کہہ کر اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں. اور یہ صرف اسی بات کو یونا جو مکاشفہ کی کتاب لکھنے والا ہے اس نے بھی بیان کیا ہے. مکاشفہ 4 باب کی 8 میں دیکھیے گا. یعنی کیا 4 جاندار ہیں. میں کسی وقت جب مکاشفہ پہ کلام سناؤں گا بھائی، بچے آپ کو سننے نہیں دے رہے، میں جب مکاشفہ پہ پیغام سناؤں گا، جلدی شروع کرنے والے ہیں، جیسے موقع ملا تو میں آسمان کا نقشہ آپ کی سامنے کروں گا کہ یہ 4 جاندار کون ہیں، 24 بزرگ کون ہیں، 1,40,000 کا ذکر ہے، وہ کون ہیں. تو جب آپ پہنچوں گا، لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ یہ جن کا ذکر کیا یہ سب خدا ان کی حمد کرتے ہیں. پڑھیے ذرا مکاشفہ 4 باب کی 8 کیا کیا لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ اور ان 4 جانداروں کے 6 بال ہیں اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں. سب بیٹھے بولے کیا کہتے ہیں؟ قدوس. جو پڑھ سکتے بولے کہیں قدوس قدوس. 3 دفعہ کہیے، دوبارہ کہیے قدوس. اپنے ہاتھ کھڑے کرے ہو کہیے، فرشتوں کے ساتھ مل کے کہیے قدوس قدوس قدوس. انگلش میں کہیے ہولی ہولی ہولی. فرشتوں کی طرح کہیے قدوس قدوس قدوس. خدا قادر مطلق جو تھا اور جو آنے والا ہے اس کے لیے تعریف کرتے گئے. فرشتے یہ کہتے ہیں. بولے ہاللیلویا ہاللیلویا. تو وہ آسمان پہ تخت نشین ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غیر قومیں جو ہے جب وہ اسرائیل کے خدا کا نام سنتی ہیں تو کام اٹھتی ہے. آپ اگر کسی کو بائبل دیں تو وہ بائبل لینے سے انکار کرتا ہے.
किसी गैर कौम को आप बाइबल दें, इंजील दें, वो इनकार करते कहते नहीं हमें जरूरत नहीं। वजह क्या है? वजह ये है कि वो डरते हैं, क्योंकि बाइबल जिंदगी बदल देती है। वो डरते हैं ऐसा ना हो कि अगर मैंने इंजील पढ़ ली तो इंजील तो बदल ही नहीं है, ये बदल के रख देगी। वो कांपते हैं, जिसको कहते हैं पिंड निकलती है, ये मुहावरा है। तो वो डरते हैं, कांपते हैं बाइबल को हाथ लगाने से। इसलिए शैतान उनके पीछे पड़ा है ताकि बाइबल को ना पढ़े। ऐसा ही एक सिचुएशन थी यशोआ की किताब के दूसरे बाब की 11वीं आयत में। दूसरे बाब की 11वीं आयत में एक ऐसी सिचुएशन है, जरा गौर से सुने, मैं वाकया सुनाता हूँ। हेलो, आप तैयार हैं? मैं हाथ खड़ा करें, सुनने के लिए तैयार हैं? जी, थैंक यू। बनी इस्राएल जब उनके मिस्र से निकले, फतूहात करते 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 यरूशलेम के करीब आए, और यरूशलेम शहर मुकफ्फल था, उसकी दीवारें थी, उसके गिर्द फसीलें थी, और बड़ा यानी मुकफ्फल का मतलब कले की तरह था। और यशुआ ने चंद जासूस भेजे कि जाके उस शहर का हाल पता करो, क्योंकि हमने तो उसको फतह करना है, उस पर हमला करना है। और जाकर उन्होंने बात की राहब से। राहब वो औरत है जिसका यीशु मसीह की जो वो है मिस्रनामा, उसमें जिक्र है। एक औरत जिसका यीशु के मिस्रनामे में जिक्र है, राहब, जो फाहिशा थी, गुनहगार थी, बदकिरदार थी, सामने औरत इतना 5-5 6 शोर करने वाली, शोर रखने वाली, ऐसी औरत खुदा ऐसों को भी बदल देता है। तो राहब के पास जब वो जासूस आए, तो जासूसों को वो कहती है, तुम जब इस्राएल मिस्र से निकले, जब तुम मिस्र से निकलते निकलते यहूदा तक आते आते तुमने फतूहात की, अब हमारे लोग डरे हुए हैं कि इनका खुदा सच्चा है, कहीं ये हमारे ऊपर भी हमला न कर दे। ये सब दूसरी बात थी, 11वीं आयत, ये हमारे बाप की बात बता रहा हूँ जो आसमान पे लिखा, क्या लिखा है? ये सब सुनते ही हमारे दिल पिघल गए, और हमारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी न रही, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। ताली बजाइए इस खुदा के लिए। तुम्हारा खुदा जो इस्राएल का खुदा है, जो आपका खुदा है, जो यहोवा खुदा है, ऊपर आसमान में भी है, जमीन में भी है। हम तो सुनते ही काम खड़े हुए थे, हमारे तो पर जो है वो खड़खड़ाने रहे थे, हम तो क्यों समझे कि अधमुआ हो गए थे, क्योंकि हमने सुना था कि ये फतूहात करते आ रहे हैं, अब हमें भी पता करनी चाहिए। कैसे करते हैं दूसरे मज़ाहिब के लोग आपके खुदा से? इसलिए आप फख्र किया करें, आप पहले कोई हिम्मत नहीं थे, यीशु को कबूल करने से अब शाही कहनों का फिरका है। हालेलुया, खुदा के बेटे बेटियां हैं, एक फैमिली है। अब जो आसमानी बाप है, मेरे पास टाइम कम है, अगर हो सके तो इसको, अगर मुकम्मल ना हुआ अगली तो आप जारी रखेंगे। तो आसमानी बाप की चंद खूबियां, हमारा बाप जो आसमान पे है उसकी चंद खूबियां आपके भी पिछले बार भी सुनाई थी, लेकिन आज मैं फर्क सुनाऊंगा। आसमानी बाप की चंद खूबियां, पहली, अब प्लीज जो बाइबल स्टूडेंट है या जो पढ़ सकते हैं वो इंग्लिश की याद करें, याद रखें। गॉड्स omnipresent, God's omnipresence, God is omnipresent और God's omnipresence, इसका मतलब है खुदा हमाजा है। फारसी का लफ्ज़ है हमाजा, और यही सैमरियों में लफ्ज़ बोला जाता है। हमारा खुदा जो आसमानी खुदा हमाजा है। हमाजा का मतलब है एक वक्त में हर जगह है। इस वक्त वो गुड न्यूज चर्च में मौजूद है, एंड इसी वक्त वो एफके चर्च में भी बैठा सुन रहा है, इसी वक्त वो किसी और कलीसिया में भी है, दुनिया में जहाँ जहाँ शायद वो अपने घर में दुआ कर रहा है वहाँ उसके साथ है। हमाजा है, हर जगह है। यिर्मयाह 23:24 में क्या लिखा है? ये लिखा है, क्या कोई आदमी पोशीदा जगह में छुप सकता है? क्या आप छुप सकते हैं खुदा से? किसी ने कहा है, पहले शेर सुन ले, किसी ने कहा गुनाहगार उस जगह, खुदा ना हो जिस जगह। कभी कभी शेर की याद आ जाती है, गुनाहगार उस जगह, खुदा ना हो जिस जगह। इसका मतलब वो तो खुदा तो हर जगह है, इसलिए गुनाह करने का कुछ आवाज नहीं बनता। यिर्मयाह 23:24 में लिखा है,
कोई आदमी पोशीदा जगहों में छू सकता है? आप छू सकते हैं खुदा से? समुद्रों पार आगे क्या जाओ उतरा तो खुदा का रूह आपको वहां भी देखता है। तो आगे क्या क्या छू सकता है कि मैं उसे ना देखूं? खुदा फरमाता है क्या जमीन और आसमान मुझसे मालूम नहीं है? खुदा फरमाता है क्या जमीन और आसमान मुझसे मालूम नहीं है? इसका मतलब खुदा कहता है कि मैं जमीन और आसमान दोनों पे हूं। बोले हालेलुया। हमारा खुदा जो आसमानी है वो जमीन पे भी है। खुदा की दूसरी खूबी खुदा बाप की, आसमानी बाप की, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, आसमान पर बाप जो है उसकी दूसरी खूबी। पहले हमने देखा हमाजा, अब हमादान। हमादान को इंग्लिश में कहते हैं ओमनी ओमनिसेंट, ओमनिशेंट कहते हैं। यानी खुदा का हाथ जो है आलमुल खैब होना, अलीम व वसीह होना। मुश्किल लफ्ज उर्दू के हैं लेकिन आप इसका मतलब समझ जाएंगे। खुदा जो है वो ओमनिशेंट है, यानी वो हमादान है, यानी वो सब कुछ जानता है। उसका फहम, उसका इदराक आप जान नहीं सकते। उसकी अक्ल तक कौन पहुंच सकता है? कौन है जो उसकी अक्ल को समझ सके? उसका फहम हमारे फहम से परे है, उसका इदराक हमारे इदराक से परे है। वो आलिमुल गैब है, अलीम व वसीह है, जानता है, समझता है, फहम रखता है। और ज़बूर 147 की 5वीं आयत में क्या लिखा है? लिखा है हमारा खुदावन, जो पढ़ सकते हैं जरूर पढ़े स्क्रीन पे भी, हमारा खुदावन बुजुर्ग और कुदरत में अजीम है, उसके फहम की इंतहा नहीं, उसके फहम की इंतहा नहीं। इसका मतलब है ओमनीशेंट है, इसका मतलब सब कुछ जानता है, उसे जानता है आप क्या सोच रहे हैं। और ये खूबी यीशु मसीह में भी थी। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। लोग बुड़बुड़ा रहे थे, ऐसा ऐसा बातें कर रहे थे, सरगोशियां कर रहे थे। तो यीशु ने कहा मुझे पता है तुम क्या बात कर रहे हो। यहाँ तक कि जब वो सोचते थे, यीशु कहता मुझे पता तुम क्या सोच रहे हो। तुम ये सोच रहे कि गुनाह कौन माफ कर सकता है? यीशु मसीह को पता चल जाता था कि सोचते क्या है। हमारा बाप हमारे सोचने को भी जानता है, हम सोच क्या रहे हैं, हमारी सोच क्या है। जहां हमारी सोच खत्म होती है उसकी सोच वहां से आगे शुरू होती है। तो वो अहलुल गैब है, उसके पास तमाम उलूम की वाकियत है। तीसरी खूबी वाकया अपनी सुनाने का वक्त नहीं है और आज के लिए इतना ही, सिर्फ तीसरी खूबी बयान करूंगा आसमानी बाप की और अगले को आज जारी करेंगे। तीसरी खूबी है ओमनीपोटेंट। आपने पोटेंशियल लफ्ज बहुत सुना होगा, पोटेंशियल को बहुत आपने सुना है, उसी का जो वर्ड है पोटेंट है। ओमनीपोटेंट का मतलब है कुदरत वाला, ऑल पावरफुल। आसमानी बाप ऑल पावरफुल, कादिर मुतलक, इसका मतलब सारी कुदरत का मम्मा, वो सब कुछ कर सकता है, जो चाहे कर सकता है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो कादिर मुतलक है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इसके लिए मैं हवाला जो दे रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि खुदा हमारा आसमानी बाप कुदरत और अदल में शानदार है। वो उसकी तखलीक जो उसने की है, आपको पैदा किया है, समंदर, पहाड़ और दरिया बनाए हैं, बड़े बड़े जानवर समंदर के अंदर उसने बनाए हैं। ऐसे ऐसे जानदार है समंदर के अंदर कि वो जहाज को गिरा सकते हैं। तो उसकी कुदरत की कोई इंतहा नहीं, वो हमारा खालिक है। बोले हालेलुया। खुदा बाप की और खूबियां हैं जो मैं आने वाले दिनों में पेश करूंगा, लेकिन आपको बताना ये चाहता हूं, सुनिए कि आपका बाप, मेरा बाप जाहो जलाल से मालूम है, आसमान पे तख्त नशीन है। बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। उसके फहम की इंतहा नहीं है। हालेलुया। और कोई माबूद ऐसा है ही नहीं जो बया खुद आसमान पे और जमीन पे भी हो। आसमान में तो हो ही नहीं सकता, जमीन पे भी वो उनके कपड़ों के निशान तक मिट गए हैं। हाँ, ऊपर बेशक मजाक बना दिया गया हो। तो याद रखें हमारा खुदा लातब्दील खुदा है, जिंदा खुदा है, अब्दुल बादशाही करने वाला खुदा है। इसलिए जब दुआए वाली का आप तस्वर सुन रहे हैं, जब हमारे बाप, तो याद रखें किसको कह रहे हैं?
किस को बता रहे हैं जो आसमानी है, किसको कह रहे हैं जो आसमानी है, जो सब कुछ जानता है, जो हमारा जा है, जो हमारा दान है, जो हमारा कीर है, जो कलीम व मसीह है, जो सब कुछ का फहम रखता है, आप उसको बता रहे हैं। मत्ती की जीव 7:11 आयत, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। आप आज जाके अच्छी चीजों की लिस्ट बनाएं जो जो आपको चाहिए। क्या चाहिए? नया घर, रहना घर, खूबसूरत घर, आपको क्या चाहिए? घर चाहिए, कोठी चाहिए, कार चाहिए, क्या क्या चाहिए? अच्छी चीजों की लिस्ट बनाएं और अच्छी चीजों की लिस्ट उसके आगे रख दें और कहते हैं तुम्हें खुद कहा है कि तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। आइए खड़े हो जाएं, आसमानी बाप से अच्छी चीजें मांगना शुरू करें।